السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری، مزید 78 فلسطینی شہید، جنگ کے خاتمے کے لیے اہم پیش رفت ہو رہی ہے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ ہو چکی، جنگ کا خاتمہ ہر ایک کی فتح ہے، امریکی صدر کا بیان، کہا ایران اب کبھی نیوکلیئر تنصیب کا سوچ نہیں سکتا۔ ہندوستان نے ایس سی او میں دہشت گردی سے متعلق مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے کر دیا انکار، راجناتھ سنگھ نے کہا دہشت گردی کا ہر عمل مجرمانہ، ایس سی او کا متحد ہونا ضروری۔ جلد ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مشیر امریکی صدر کا بیان، کہا ابراہم معاہدے کو دی جا رہی ہے وسعت۔ بیت المقدس میں مسلمانوں، مسیحوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات 12 دن بعد کھول دیے گئے، اسرائیل ایران جنگ کے دوران کیا گیا تھا تمام مقامات کو بند۔ اور چین نے ماحول دوست توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے ایک منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا، ہوا اور سورج سے بجلی پیدا کرنے میں بڑی کامیابی کی حاصل۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں حرمین شریفین کی اہم خبر سے، جہاں نئے ہجری سال کا آج پہلا دن ہے اور 1447ویں ہجری کا عالم اسلام میں آغاز ہو گیا ہے۔ ایسے میں آج غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ نئے ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کسوے کی تبدیلی کا کام چہارشنبے کو بعد نماز عصر شروع کیا گیا، جو جمعرات کی صبح مکمل ہوا۔ کسوہ کعبہ مسجد حرم کانوائے کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ غلاف کعبہ 4 برابر پٹیوں پر مشتمل ہے۔ کسوہ کی ہر ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ کعبے کے بالائی حصے پر لایا جاتا ہے، جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ یہ عمل 4 مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے، جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے کا پردے کو اتارا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ حکام کے مطابق مئی سے اب تک اسرائیل کی جانب سے امدادی مراکز پر 500 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے۔ دوسری جانب خان یونس میں حماس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی بختربند گاڑی کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑا دیا، جس میں 7 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تقریباً 2 سال سے جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جلد ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ ایران سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کا دوبارہ آغاز نہیں کرے گا۔ دی ہیگ میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تہران کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے، لیکن خبردار کیا کہ ایران اور اسرائیل جنگ دوبارہ شروع بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے تیزی سے خاتمے کو بھی سراہا اور کہا واشنگٹن اگلے ہفتے ایرانی حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں تہران سے اپنے جوہری عزائم کو ختم کرنے کے معاہدے کا خواہش مند ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے بموں نے ایران کی زیر زمین فردوں جوہری تنصیبوں کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نقصان شدید تھا، جی ہاں یہ بہت شدید تھا۔ انہوں نے ایرانی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کا پرزور دعویٰ کیا اور کہا اس اقدام نے جنگ کا خاتمہ کیا اور انہوں نے اسے سب کی فتح قرار دیا۔ امریکی صدر نے ہیگ میں نیٹو اجلاس کے موقع پر اس جنگ بندی کے بارے میں کہا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہم شاید کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حالیہ امریکی حملوں کو ہیروشیما اور ناگاساکی پر کیے گئے حملوں سے بھی تشبیہ دی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق بدھ کو ملک کے قانون سازوں نے اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ ایران اور اسرائیل اب تک کے شدید تصادم کے بعد معمول کی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت ایران نے کہا اس نے اپنے جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔
ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले अपने बयान में कहा, सहूलियात को दोबारा शुरू करने के मंसूबे से पहले तैयार कर लिए गए हैं और हमारी हिकमत अमली ये है कि पैदावार और खिदमात में खलल ना पड़े। ट्रम्प ने कहा, उन्हें यकीन है कि तेहरान मुफाहिमत का सिफारती रास्ता इख्तियार करेगा और मैं आपको बताऊं, आखिरी चीज़ जो वो करना चाहते हैं वो ये कि उनके पास जो कुछ बचा है उससे अफजोदा करना है। अमेरिकी सदर ने मुतनब्बा किया कि अगर ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा बनाने की कोशिश की तो फिर हम ऐसा होने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। जंगबंदी के बाद ईरानी हुकाम का कहना है कि इजरायली हमलों में 610 अफराद हलाक जबकि 5000 के करीब जख्मी हुए हैं। ताहम ईरान में मीडिया पर सख्त पाबंदियों की वजह से नुकसान की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से किए गए हमलों के नतीजे में इसराइल में 28 अफराद हलाक हुए हैं। जंगबंदी के बाद ईरानी हुकाम ने मुल्की मामलात पर अपनी गिरफ्त साबित करने के लिए तेज़ी से मुतादिद इक़दाम किए। ईरानी अदलिया ने गुज़िश्ता रोज़ 3 अफराद को फांसी की सज़ा देने का ऐलान किया। उन अफराद पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद के साथ ताउन और मुख्तलिफ आलात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम था। वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से इसराइल के साथ रवाबित रखने और ताउन करने के इल्ज़ाम में अब तक 700 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के रुकन ममालिक ने दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने पर इत्तेफाक कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ नीदरलैंड में शुरू होने वाले इस तारीखी सरबराही इजलास के हतमी एलामिया में कहा गया है, इत्तेहादी ममालिक सन 2035 तक बुनियादी दिफाई तकादों और दिफा व सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात के लिए सालाना GDP का 5% खर्च करने के पाबंद होंगे ताकि इनफरादी और इज्तिमाई फ़राइज़ को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए रुकन ममालिक के दहशतगर्दी पर मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। SCO के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा का 2 रोज़ा इजलास चीन के शहर जिंगदाओ में जारी है। चीन के सदारत में होने वाली इस मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी पर रुकन ममालिक के मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सामने दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को बिल्कुल वादे करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दी का हर अमल मुजरिमाना और बिला जवाज़ है और तंजीम को इज्तिमाई सलामती को दरपेश इस खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने चीन के जिंगदाओ में SCO ममालिक के वज़राए दिफा की मीटिंग में जोर देकर कहा, अमन और खुशहाली दहशतगर्दी और गैर रियासती अनासिर के हाथों में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव के साथ साथ नहीं रह सकती। दहशतगर्दी के मुर्तकबों, हामियों, माली मावनीन और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना जरूरी है। That the role of SCO becomes very important today. SCO member countries contribute around 30% of the global GDP, while about 40% of the world's population resides in them. We therefore have a collective stake to create a safe, secure and stable region that can contribute towards progress and improvement of our people's lives. Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations.
India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SEO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SEO heads of the state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक अपने बयान में स्टीव विटक ने कहा कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम मुआहदे को वसाअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। उन्होंने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को तस्लीम करवाने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, और ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। दुनिया भर में मकबूल अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के बानी अरबपति जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरियन सैंचेज की पुरताउश शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। जेफ बेजोस और लॉरेन अपनी शादी के मकाम इटली पहुंच गए, जहां दोनों की शादी की तकरीब वेंस शहर में होंगी। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल जेफ बेजोस की शादी को सदी की सबसे बड़ी शादी करार दिया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए सदर ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। चीन ने माहौल दोस्त तवानाई के मंसूबों के हवाले से एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चीन ने मई में हवा और सूरज से इतनी बिजली पैदा करने में कामयाबी हासिल की जो यूरोपीय मुल्क पोलैंड की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी थी। चीन की जानिब से हालिया बरसों में माहौल दोस्त तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है और मई 2025 में ही 93 गीगावाट सोलार मंसूबों की तनसीब की गई, या यूं कह लें कि वहां हर सेकंड में लगभग 100 सोलार पैनल्स लगाए गए। इसी तरह 26 गीगावाट के विंड ट्रिब्यूटर्स की तनसीब हो गई है। वस्ती मैक्सिको में फायरिंग के दौरान बच्चों समेत कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। सदर क्लॉडिया शेइनबाम ने इसकी तस्दीक की है। सदर ने मैक्सिको सिटी में नेशनल पैलेस में अपनी रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये वाकई एक झड़प थी, लेकिन बदकिस्मती से बच्चे मारे गए। शेइनबाम ने कहा जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वाक़या ज़ेर तफ्तीश है और उन्होंने रियासत में जारी तशद्दुद से निमटने के लिए मिलकर काम करने का अहद किया। सदर ने कहा हम गवर्नर के साथ जितना मुमकिन हो सके काम करते रहेंगे। मकबूदा बैतुल मुक़द्दस यानी कि मशरिक़ यरूशलेम में वाक़ मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों के मुक़द्दस मकामात को 12 दिन की बंदिश के बाद दोबारा खोल दिया गया। मुक़द्दस मकामात की मुख्तलिफ इंतज़ामिया बोर्ड्स ने इसराइली हुक्काम के मशवरे के बाद तीनों मज़ाहिब की इबादत गाहों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया, जो इसराइल के ईरान पर हमलों और ईरान के जवाबी कार्रवाइयों के बाद बंद कर दी गई थी। इसराइली इंतज़ामिया ने बताया है कि तीनों मज़ाहिब के न सिर्फ मुक़द्दस मकामात को कोरोना वबा के बाद पहली बार बंद किया गया था, बल्कि शहर में मजहबी मुनाफिरत के खदशे के पेश नज़र मुक़द्दस तरीन हसास मकामात के इलाके मशरिक़ी यरूशलेम में गैर रिहायशी अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुक़ाबिल लोगों ने हुकूमत से जम्मू कश्मीर में गैर दरियाफ्त शुदा सियाहती मकामात को फ़रोग़ देने की अपील की है। वाज़ेह है कि 22 अप्रैल को पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद कुछ सियाहती मकामात बंद हैं, जिससे 26 शहरी हलाक हुए थे। इसी दौरान अब सयाह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों में खौफ का माहौल भी कम हो गया है। सयाहों और मकामी अफराद ने मीडिया से बातचीत में अपील की है कि सियाहती मकामात को मज़ीद तरक्की दी जाए और सजाया जाए ताकि यहाँ की मईशत को तरक्की मिल सके। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आज तक ना ध्यान दिया, यहाँ जहाँ पे कोई भी आज तक इन्वेस्टमेंट हुई है। और ऐसे ही 90% ये जो जगह हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, जहाँ टूरिस्ट आता नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसी ग्रीन स्ट्रेच जो मिडोज हैं, लश ग्रीन है, जहाँ को आज के एंजाइटी और डिप्रेशन, जहाँ यूथ सबमर्ज है, जहाँ पे नेचुरल थेरेपी मिलती है। मगर बदकिस्मती है कि इन जगहों को गवर्नमेंट ने या नहीं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्ट के साथ साथ प्रमोट किया, एडवर्टाइजमेंट के साथ, सक्सेस के साथ साथ, भले इसमें अन नंबर ऑफ जिसको अनकाउंटेबल ऐसी जगह है
जिनको यहाँ फ्यूचर में एक्सप्लोर किया जा सकता है लेंस पावर से, कंटेंट क्रिएटर से। मीडिया कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रही है और अब वक्त आ चुका है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को, गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको यहाँ पे फेस्टिवल्स करवाने चाहिए, ताकि भले इसके इन टूरिज्म डेस्टिनेशन से हजारों करोड़, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू हर साल 8 से 10 हज़ार करोड़ का है, कम अज कम दर्जनों ऐसे लोग हैं जो लोकलाइट्स हैं, जिनको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जगह एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ स्टॉल्स खुल सकते हैं, यहाँ पे लोकल टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पे लोगों को यानी रेवेन्यू जनरेट होगा कहीं ना कहीं भलेसा की आइडेंटिटी स्टेट के साथ साथ कंट्री लेवल में। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल की वसातत से पूरे भलेस को यहाँ पे आने वाले दिनों में ऐसी जगहों को बूस्ट करेगा अपने फुटफॉल की वजह से, और टूरिज्म आप भी जो डेस्टिनेशन है उनको रियल मीन में लोग आके बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट करें। अगर कहीं आपको धरती पे स्वर्ग देखना है तो आप भलेसा के इस धनासू एरिया में आकर के जो जरूर स्वर्ग की जो एंजॉयमेंट है वो ले सकते हैं। और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है, खूबसूरत बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए कि ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उनको जो है टूरिज्म पटल पे लाना चाहिए। जो मैं डायरेक्टर टूरिज्म उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम इन इलाकों को देखें, ताकि ये जो इतनी खूबसूरत जगहें हैं ये सरकार के लिए एक रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकता है और इलाके के युवाओं के लिए इकोनॉमी भी यहाँ की बूस्ट कर सकता है। और बहुत खूबसूरत जगह है, लाजवाब है। एक बार जरूर भलेसा में 32 से ज्यादा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी डेस्टिनेशन जो हैं वो सरकार की नज़रों से बहुत दूर हैं। टॉप पे है, धनासू के नाम से जो है ये जगह जानी जाती है और एक बहुत अच्छी जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे एक टूरिस्ट पोटेंशियल पे जो है इस जगह को लाया जाए और यहाँ पे जो है टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन अनएक्सप्लोर है, आज तक इसी जगहों को जो है एक्सप्लोर नहीं किया गया है। भलेसा में इसके अलावा भी कई सारी जगह है जो है अनएक्सप्लोर है, लेकिन ऐसे अच्छे जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इससे अच्छे जो है टूरिस्ट स्पॉट है, एक टूरिस्ट हब जो है भलेसा में बन सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या यहाँ पे जो है आज तक जो है इसकी ओर तवज्जो नहीं रही है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जो है तवज्जो दीजिए भलेसा की ओर। भलेसा को एक जो है भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी दी जाए और भलेसा की जितनी भी टूरिस्ट पॉइंट है इनको जो है तो एक्सप्लोर किया जाए और यहाँ पे भी जो है टूरिस्ट आ सकते हैं। टूरिस्ट जो है तो यहाँ आए, अपना मतलब दिल बहलाई करें और देखें। अगर हिंदुस्तान में कोई अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है तो वो धनासू है, डुलची है और आगे बहुत सारे इलाके हैं हमारे आगे, लेकिन ये तो पहला पॉइंट है। यहाँ खूबसूरती क्या है, इससे आगे और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गाजा में इस्राएली बर्बरियत का सिलसिला जारी, मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त हो रही है, ट्रंप का दावा। ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह हो चुकी, जंग का खात्मा हर एक की फतेह है, अमरीकी सदर का बयान, कहा ईरान अब कभी न्यूक्लियर तंसीब का सोच नहीं सकता। हिंदुस्तान ने SCO में दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से कर दिया इनकार। राजनाथ सिंह ने कहा दहशतगर्दी का हर अमल मुजरिमाना, SCO का मुत्तहिद होना जरूरी। जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, मुशीर अमरीकी सदर का बयान, कहा अब्राहम मुआहिदे को दी जा रही है वुसअत। बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों के मुक़द्दस मकामात 12 दिन बाद खोल दिए गए। इसराइल ईरान जंग के दौरान किया गया था तमाम मकामात को बंद। और चीन ने माहौल दोस्त तवानाई के मंसूबों के हवाले से एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, हवा और सूरज से बिजली पैदा करने में बड़ी कामयाबी की हासिल। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।